Dev Deepawali, Narendra Modi, millions of lamps that have been lit on the ghats, complemented by the state-of-the-art technology on the holy river Ganga. A beautiful amalgamation alongside the people of Varanasi, and witnessing the spectacular light represented by the city of Varanasi. And here, beautifully lit Chet Ghat on the holy river Varanasi. Important day here, celebration of Dev Deepawali. Prime Minister Narendra Modi also spending his day here. From launching of infrastructure projects to participating in Dev Deepawali with the people of the city that also happens to be his parliamentary constituency. The holy river Ganga caressing the ghats of Varanasi. The waves are also beautifully lit by millions of diyas that have been lit as part of Dev Deepawali celebration that also marks the conclusion of the 5-day Ganga Mahotsav that is celebrated during this time of the year. The full moon, Kartik Purnima, complementing the celebration taking place by the mortals in the ancient city of Varanasi. जहाँ काशी की संस्कृति और परंपरा है ये देव दीपावली पर्व, और सालों से देव दीपावली पर्व, जब दीपावली खत्म हो जाती है उसके लगभग 15 दिन बाद देव दीपावली पर्व जो है मनाया जाता है काशी में। और ये बहुत खास उत्सव है काशी के लिए, वाराणसी के लिए, और काशी के लिए क्या बल्कि ये कह सकते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग दूर दूर से आते हैं। और देखिए ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये आप महसूस कर सकते होंगे। प्रधानमंत्री जब वहां पर बोट में क्रूज में खड़े हैं तो उस वक्त क्या अद्भुत नजारा है, ये आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ऊपर पूरी तरह से चांद है और नीचे लाखों दियों की रोशनी है, और साथ साथ गंगा मां का स्पर्श है, मां गंगा की गोद में हैं आप। और आप सोचिए कि ये नजारा, ये दृश्य कितना रोमांचित करने वाला और कितना आपकी आत्मा को छू लेने वाला एक ऐसा दृश्य जो शायद आप कभी ना भूल पाएं। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, और जब कभी भी आप काशी जाएं, बनारस जाएं, तो ये जरूर आप कीजिएगा कि शाम को, इससे पहले अगर आप देखें तो काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी की सुबह बहुत निराली होती है, बहुत आध्यात्मिक होती है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपस में कुछ चर्चा करते हुए बीच बीच में प्रधानमंत्री जो लोग इस वक्त गंगा में बोटिंग कर रहे हैं, नौकायान में हैं, उनको हाथ हिलाकर बीच बीच में उनकी तरफ इशारा भी करते हैं, क्योंकि आसपास जो नावों में लोग निकल रहे हैं वो प्रधानमंत्री को देखकर उत्साहित होकर, उल्लासित होकर उनकी तरफ इशारा करते हैं। और प्रधानमंत्री को जैसे ही मौका मिलता है, अवसर मिलता है, वो उनके अभिवादन का जवाब देते हैं। तो इस वक्त ये जो क्रूज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्रूज में है, इस क्रूज शिप में। इस क्रूज शिप में आप जाएंगे तो बहुत महंगा नहीं है, इसका किराया बहुत कम है, लेकिन इस क्रूज शिप में आप जाएंगे तो आपको चाय बिस्किट भी मिलेगी, आप इसमें आनंद भी ले सकते हैं इस क्रूज शिप में बैठ करके। और इस क्रूज शिप से आप तमाम जो आसपास के घाट हैं और जो रोशन घाट हैं, जो बिल्कुल रोशनी से नहाए रहते हैं, उन घाटों के दर्शन आप कर सकते हैं। ये अपने आप में एक अलग तरह का आपका एक अलग अनुभव है, ये बिल्कुल अलग तरह के अनुभव का आप आनंद ले सकते हैं। And Ashok, it has been a particular preference of the Prime Minister, if you remember, to travel through the waterways, to promote inland waterways. We know Varanasi is also part of an important waterways from Kolkata to, in fact, Prayagraj. Varanasi forms an important center of inland waterways, and here Prime Minister Narendra Modi on that beautiful cruise ship. And beautiful also are the visuals of the ghats. The faint yellow line that you see are basically millions and millions of diyas that have been lit on the holy occasion of Dev Deepawali, 5-day Ganga Mahotsav festival. It concludes today, and Prime Minister is here with the people of his parliamentary constituency, a city that is very close to his heart. In his address, when he spoke earlier, also spoke about how it is going to be special for people of Varanasi, this moment, this Dev Deepawali, because he also spoke about, it's a special moment, Ashok, when he spoke about an idol of Ma Annapurna that was taken away, stolen decades ago
is also set to return, and there we also got a glimpse of Sant Ravidas Park, the idol of Sant Ravidas, who's followed, who's worshipped by people of all sections of society. Prime Minister, in fact, would also be going and paying their respects. And there in that view, you can see hundreds, thousands and lakhs of diyas lit on the ghats of River Ganga, and the cruise on which Prime Minister Narendra Modi is travelling on the holy River Ganga. आपने वाटरवेज की बात की, तो देखिए आप जिस वक्त ये पूरी परिकल्पना की गई थी, और इससे पहले गंगा में लोग वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक, कोलकाता तक जाते थे, और न सिर्फ जाते थे बल्कि जो सामान है उनके परिवहन का एक बड़ा साधन पानी से जाने का था। और जिस वक्त इसकी पूरी परिकल्पना हुई, दोबारा जब 2014 में इसकी परिकल्पना हुई, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गंगा में क्रूज चलाने की बात करी, तो बहुत से लोग इस बात पे हैरान थे, क्योंकि गंगा का पानी इतना गंदा था और इतना उथली थी गंगा। लोग कह रहे थे कि यहाँ पर एक छोटा मोटा क्रूज चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गंगा की स्वच्छता पर काम किया गया, घाटों के सौंदर्यीकरण पर काम किया गया, और आखिरकार आज ये क्रूज शिप इस तरह से आप देख रहे हैं गंगा में। और आपको याद होगा कि अभी जब प्रधानमंत्री पिछले दिनों केवड़िया गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, उनके जन्मोत्सव पर जब गए थे, वहां पर भी केवड़िया में भी इसी तरह का एक क्रूज शिप अभी उन्होंने इसकी शुरुआत करके आ रहे हैं। तो कनेक्टिविटी पर प्रधानमंत्री का हमेशा एक जोर रहता है, फोकस रहता है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, और चाहे वो पानी के थ्रू जो कनेक्टिविटी है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा बहुत विशेष आग्रह रहता है। और आप देखिए कि इन तीनों चीजों पर कितनी तेजी से लगातार बीते 6 सालों में काम हो रहा है। ये अलकनंदा, आप देखिए इसका ये जो बोट है अलकनंदा आपको दिख रही है, और अपने आप में ये अब ये सफर यहां पर समाप्त हो रहा है, और इसके बाद प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम हम देखेंगे। That's right, Ashok. In fact, talking about connectivity, one of the first programs that Prime Minister participated today was a highway NH19 widening that connects Prayagraj with the holy city of Varanasi, and he spoke about how it is going to help all sections of society, not just people who commute on a daily basis, farmers who have to take their produce to different cities, covered yatris who have to travel on these routes. So connectivity a priority for Prime Minister. There, Prime Minister's cruise parking near Ravidas Park, and that is Ravidas Ghat as well, and Prime Minister would be paying his respects to Guru Sant Ravidas, 14th century Sant Ravidas, who is known for his sermons of equality. He is also known for his contribution, the way he led the Bhakti movement in the country. And there the beautifully lit Varanasi bears testimony to the spirit of Varanasi, Prime Minister in his address. So you can see Prime Minister's cruise ship is parked on Sant Ravidas Ghat. In the background you can see millions of diyas lighting the ghat, the other side of River Ganga, the ghat of Varanasi. Prime Minister in his address spoke about it may be a time of gloom because of the pandemic, time of precautions, but that hasn't diminished in any manner the spirit, the spirituality, the spiritual strength of Varanasi, and that, he says, is the true identity of the holy city of Varanasi. And that spirit through the diyas is also complemented through this state-of-the-art sound and light show that concluded a short while ago, and we can also see these beautiful lights still on, adding fresh hues and color to the holy city of Varanasi. Prime Minister's next program would be paying his respects to the idol of Sant Ravidas. जी, आपने अभी जो कहा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में काफी कुछ बदल गया है, लेकिन काशी की ऊर्जा, काशी की भक्ति और शक्ति, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो काशी में अपने आप में एक अलग तरह की ऊर्जा है,
एक अलग तरह की भक्ति का भी भाव है, शक्ति का भी भाव है। और काशी की धरती पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक अलग ही तरह का अल्हड़पन भी होता है, साथ में उत्साह भी होता है, ऊर्जा भी होती है, भक्ति का भाव भी होता है और आध्यात्मिकता भी आपको सराबोर कर देती है। ये काशी की जो मिट्टी है, काशी की जो धरती है, उसका ये बहुत ही एक निराला रंग है, अनोखा रंग है। ये वास्तव में काशी है। और ये कहते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी जो है, विश्व की सबसे पुरानी जीवित नगरी अगर कोई है तो वो काशी है। बहुत सारी पुरानी नगरियां हैं, लेकिन जो अगर जीवित नगरी काशी कहेंगे, विश्व की सबसे पुरानी अगर कोई जीवित नगरी है तो दरअसल उसे काशी माना गया है। इसीलिए न सिर्फ भारत भर से बल्कि विश्व भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं काशी का आनंद लेने, काशी की धरती को देखने के लिए और यहाँ पर जो आध्यात्मिकता के रंग बिखरे हुए हैं उसका आनंद लेने के लिए। Absolutely, it's a beautiful moonlit night, Kartik Purnima. The night is, and the moonlight is complemented beautifully by the lamps, the earthen lamps that light the ghats of Varanasi. And Ashok, earthen lamps also remind us of the vision of vocal for local. Prime Minister Narendra Modi in his address in the celebration that marks Dev Deepawali spoke about the need to remember the spirit of vocal for local, whether it's Diwali, whether it's Dev Deepawali. He hailed the people of Kashi, the people of the nation, to not forget that while we resurrect the nation's economy, the nation's strength, on this holy occasion, Prime Minister also remembered the bravery of the Jawans, the celebrations, whether religious or in other forms. These celebrations become possible, these gatherings become possible because our Jawans guard our borders, make us feel safe, protect the nation at all times. So he said, when you light the diyas, also remember and light diyas for the bravery of Jawans as well. Today also happens to be Guru Purab, Guru Nanak Dev's. जी, और ये जो आप देख रहे हैं ये चेत सिंह घाट है जहां पर अभी लाइट एंड शो हुआ। इस वक्त जो आपने देखा लाइट एंड साउंड शो हुआ, और इस चेत सिंह घाट के बारे में कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो पंचकोट के राजा ने किया था। कुल मिलाकर 84 घाट हैं वाराणसी में अलग अलग तरह के, और लगभग 4 मील लंबे तट पर ये घाट बने। और इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस क्रूज से बाहर आते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का जो आज का रविदास पार्क की तरफ प्रधानमंत्री इस वक्त बढ़ रहे हैं और इसके बाद सीधा सारनाथ जाएंगे। एक बार फिर से लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने काशी के लोगों को विशेषकर आज कई बार उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, काशी के लोगों का विशेष आभार जताया और मां अन्नपूर्णा देवी की उस प्रतिमा की भी बात की जो लगभग 100 साल बाद भारत वापस आ रही है, क्योंकि यहां से वो चुरा ली गई थी काशी। और काशी के बारे में कहते हैं कि काशी पर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। काशी के लिए मां अन्नपूर्णा का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि काशी के लिए कहा जाता है कि वहां पर कभी कोई भूखा नहीं रहता, क्योंकि वहां पर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन मां अन्नपूर्णा की एक बहुत ही प्राचीन, ये देखिए संत रविदास की जो मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है, जिस पर प्रधानमंत्री आएंगे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और ये सामाजिक समरसता का एक विशेष जो है प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामाजिक समरसता का एक विशेष संदेश जाए। और आज जबकि गुरु पर्व भी है, गुरु नानक देव जयंती भी है, उन्होंने काशी के लोगों का जब अभिवादन किया तो उन्होंने न सिर्फ काशी के कोतवाल का जिक्र किया बल्कि मां अन्नपूर्णा देवी का जिक्र किया, मां गंगा का, और साथ साथ गुरु नानक जयंती है तो प्रधानमंत्री ने बोला जो बोले सो निहाल, और साथ साथ नमो बुद्धाय उन्होंने ये भी कहा। तो एक तरह से धार्मिक और सामाजिक समरसता किस तरह से बनी रहे, कैसे सबका साथ सबका विकास का भाव है वो जो है वो बना रहे, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री हमेशा सजग रहते हैं। और इसीलिए अब वो संत रविदास की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए हैं। And beautifully lit lamps welcome Prime Minister Narendra Modi here as well at Sant Ravidas Ghat, and we also see the idol, the statue of the venerated poet Saint Sant Ravidas.
Ashokji, what is special is also that you mentioned Guru Purab, and Ravidas ji is known as poet saint. His devotional songs are the ways through his followers follow him, and Guru Granth Sahib also has references to songs by Sant Ravidas. बिल्कुल. So on the occasion of Guru Purnima and Guru Purab, Prime Minister Narendra Modi there taking on the steps of Ravidas Ghat and moving towards the idol of much venerated Sant Ravidas. You can see it in the visuals. जो आप घाट देख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं काशी बचपन से जाता रहा हूं. मेरे जो मूल निवास, मतलब मेरा जो कह सकते हैं कि जो मूल है वो काशी में है, और मैं बचपन से देखता रहा था. ये सब घाट वास्तव में, ये जो आपको आज जो घाट दिख रहे हैं इतने खूबसूरत, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था. घाटों की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर लोग जाते नहीं थे. हम लोग जब दिल्ली से जाते थे, वाराणसी जाते थे, तो गंगा के दर्शन करने की अभिलाषा जरूर सबके मन में रहती थी, लेकिन घाटों पर जो स्थिति थी, घाटों पर जो गंदगी थी, उसको देखकर बहुत कम लोग हिम्मत करते थे. जाते भी थे और किसी तरह से चक्कर लगाकर एक बार आ जाते थे, मां गंगा का आचमन करके आ जाते थे. लेकिन आज जो ये घाट आप देख रहे हैं, ये इतने खूबसूरत बन चुके हैं और इतना अद्भुत नजारा है कि आज आप जाएं तो वहां पर घंटों घंटों बैठ सकते हैं. और अगर आप आज काशी जाएंगे, आज बनारस जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, तो आप एक बार नहीं, आपका मन करेगा कि आप रोज रोज जाएं, बार बार जाएं गंगा तट पर. इतने खूबसूरत घाट और मां गंगा के गोद में बैठकर आप वहां पर जो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद आप ले सकते हैं. There, you're right, Ashok. And for Swachh Bharat Abhiyan, Varanasi was an important center. Several times when Prime Minister would visit his parliamentary constituency, he would urge on the people of the city to change the destiny of Varanasi. The success of Swachh Bharat Abhiyan is really presented through the success in which Varanasi turned around, the way it looked, the way it really conquered the imagination with the beauty, with the cleanliness that we see today. Whether it is the ghats, whether we see it's Ravidas Park where Prime Minister Narendra Modi is moving towards the statue of venerated Saint Ravidas. आपने स्वच्छता की बात करी ना, मैं ये आपको बताऊं कि ये लोगों को कहा जाता है, बनारस के लोगों के लिए कहा जाता है, वो बड़े अल्हड़ होते हैं, मदमस्त होते हैं, किसी की बात सुनते नहीं. और आप जानते हैं बनारस का पान भी बहुत मशहूर है. दुनिया भर में लोग बनारस का पान खाने आते हैं. बनारसियों की एक आदत मानी जाती थी कि वो पान खाते हैं, कहीं भी थूक देते थे. तो ये जब प्रधानमंत्री ने जब वहां स्वच्छता की बात की, तो कई लोगों को लगता था कि बनारसियों को बदलना, बनारसियों को ये कहना कि भाई वो पान खा के इधर उधर ना थूकें, ऐसा बनारस के लोगों से पालन करवाना बड़ा मुश्किल है. लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री खुद घाट पे पहुंचे थे और उन्होंने पहला फावड़ा खुद उठाया था, और फावड़े से उठाकर उन्होंने मिट्टी साफ करनी शुरू की थी. और साथ साथ प्रधानमंत्री ने लोगों से निवेदन किया था कि अपनी आदतें बदलें. तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात थी, लोग अपनी आदतें बदलें. ऐसा कह देना बड़ा आसान है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब खुद बढ़कर नेतृत्व किया, तो लोगों ने, आप देखिए, लोगों की आदतें बदलने लगी हैं. और अब वाराणसी में भी ये चीज बदली. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं की थी, और साथ साथ प्रधानमंत्री ने लोगों से निवेदन किया था. प्रधानमंत्री, आपने आदत की बात करी अशोक, ये भी बहुत जरूरी आदतें हैं आज के समय की. हैंड सैनिटाइज करना हो, बिल्कुल, या मास्क पहनना हो. आज दो एड्रेसेस थे प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन जब उनका एड्रेस समाप्त हुआ तो वो दोबारा अपना मास्क पहने. हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किए हुए हैं, जो पीछे सिक्योरिटी है, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, सभी मास्क पहने हुए हैं. तो ये भी एक संदेश जाता है, बिल्कुल, कि जो लीडर्स है. और आपने जो घाट पर लोगों की भीड़ देखी ना, वो बहुत जाहिर सी बात है, कोरोना के कारण बहुत सीमित संख्या में लोग थे जी. नहीं तो ये देख रहे हैं संत रविदास की स्मृति पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14th-15th century poet saint Sant Ravidas, Prime Minister Narendra Modi paying his respects, floral tributes. He is the leader who's Sant Ravidas known for uniting the society, the divisions that existed during his time, and much later as well, devotional songs that talk about unity of people, unity of human spirits. Prime Minister Narendra Modi paying his respects at the altar at the statue of Sant Ravidas in Varanasi.
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सामाजिक समरसता का एक बड़ा संदेश भी संत रविदास जी के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसा कि अभी बात हुई कि संत रविदास और साथ साथ गुरु नानक देव भी संत रविदास की जो उनके अनमोल वचन है वो उनके आपको गुरु वाणी में भी ऐसा आपको लगेगा। और यहां पर भी इसके भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। वहां पर इसके लिए भी विशेष रूप से एक बड़ा फंड जो अलॉट किया गया है ताकि संत रविदास की जो धरोहर है उसको खूबसूरती से संजोया जा सके। And there Prime Minister Narendra Modi at the idol of Sant Ravidas, and in the background you can see beautifully decorated Sant Ravidas Park that is just next to Sant Ravidas Ghat, and Prime Minister paying his respect to the poet saint Sant Ravidas. A lot is known about Sant Ravidas, Ashok ji, through myths, through stories that pass on from generation to generation. It is said he rose from a very difficult background, from a poor family, but he rose through his spiritual strength. Instead of making his difficult background his weakness, he made it into a strength. His songs, his poetry, and Prime Minister Narendra Modi there bowing to poet Saint Ravidas. और संत रविदास हमेशा कहते थे व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर उसको सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो किस जाति में पैदा हुआ है, किस कुल में, किस परिवार में पैदा हुआ है। और इसीलिए संत रविदास ने कहा था, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होए गुण प्रवीण। यानी जिसमें गुण हो आप उसको पूजिए। अगर कोई ब्राह्मण भी है लेकिन गुणहीन है तो उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर कोई चांडाल भी है लेकिन उसके गुण हैं तो आप उसको पूजिए। वो हमेशा कहते थे कि जो गुण हैं व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण हैं वो आधार होने चाहिए किसी को भी पूजने का। और देखिए प्रधानमंत्री ने अभी यहां पर अपने संबोधन में एक बहुत विशेष बात कही थी। उन्होंने कहा, विरासत की जब बात की तब उन्होंने एक इशारा किया था कि विरासत जो है वो देश की धरोहर होती है, वो विरासत होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी भारत की जो संस्कृति है, आस्था है, मूल्य हैं, वो विरासत होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए उनका परिवार, उनके परिवार की प्रतिमाएं, उनके परिवार की जो तस्वीरें हैं वो विरासत होती हैं। तो यहां पर भी देखिए कि गुरु रविदास ने भी लगभग ऐसा ही संदेश दिया था कि गुण या कुल या जाति या परिवार जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता जहां आप पैदा होते हैं, बल्कि आपके अंदर गुण क्या हैं, सद्गुण क्या हैं, वो आधार होने चाहिए। आप किसको पूजते हैं, किसको आप अहम मानते हैं। Absolutely, Ashok. Unity of the human spirit was the message of Sant Ravidas, and Prime Minister Narendra Modi there, after having paid respects on the idol, on the statue of Sant Ravidas, the much beloved 14th century, that's when it is said to be the origin of Sant Ravidas. He spoke about the removal of social divisions on the basis of gender, on the basis of wealth. He promoted unity in pursuit of personal spiritual freedoms, and that today also characterizes the spirit of Varanasi, that is home to so many cultures, so many communities, the spirit of India for that matter. Unity in diversity that really symbolizes the spirit of our country. Prime Minister in his address also spoke about that, and those beautifully lit diyas continue to shine bright. The celebration of Dev Deepawali that marks the day of Kartik Purnima. Prime Minister Narendra Modi there participating in Dev Deepawali and also paying his respects at Sant Ravidas statue. जी हाँ, तो आप इस वक्त वाराणसी से सीधा प्रसारण देख रहे थे। प्रधानमंत्री का जो एक और कार्यक्रम है, उम्मीद ये की जा रही है कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, सारनाथ पहुंचेंगे, जो बौद्ध संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि एक शाम होने पर भी, अंधेरा होने पर भी आप देख सकते हैं कितनी